Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, today once again I am here with the lesson The Bond of Love of class ninth. This is the part 3 video. In this particular video, I am going to explain the lesson from number 12. I have explained up to 11th and I hope that you understand well about this all. Now I am going to number 12 where I take here this. The students, I hope, look here, the month rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. Here writer says that Bruno, it means the bear baby who came there as a child. Now he became big. Now he became big. That is why here writer says that he grown many times the size. He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. Writer just said that Bruno just equal to Alsatian dog in height, only in height, but he was over outgrown. He was become more fatty than those animal, but was just as sweet, just as mischievous. Here writer said that now he was just being mischievous. Matlab his activity is just showing like that. He is as sweet as he was in childhood, and he mischievous and he also mischievous as he was in childhood. Just a playful, and he was very fond of us all. Writer further said that he nowadays he also loves us a lot. Above all, he loved my wife, and she loved him too. You know well that Bruno loved his wife much, as well as his wife also loved him much. She had changed his name from Bruno to Baba, and after when become big animal, then wife, it means the writer wife, changed his name from Bruno to Baba. Above all, he loved my wife and she loved him too. She had changed the name his Bruno to Baba. A Hindustani word signifies small. Baba means a small boy, and he could do a few tricks. फ्यू ड्रेसअप फ्यू प्ले थिंग जैसे कुछ खेल खेलना तो मतलब सेइंग ऑफ सेंस ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स और कुछ ट्रिक भी अडाप्ट करता था कुछ प्ले थिंग्स भी दिखाता था एट द मो कमांड जैसे उसे कहा जाए बाबा रेसल आर बाबा बॉक्स अगर उसको कॉशन दिया जाए कमांड दिया जाए कि बाबा रेसल आर बॉक्स ही वगैरहली टैकल्ड एनी वन इफ एनी वन कम ऑन हिज वे ही जस्ट गो टू टैकल्ड आर fight with that particular person who came forward for a rough and tumble जो भी उसके सामने आता था उसको वो टैकल करता टम्बल करता था उसको लुढ़काने लगता था उसके साथ रेसलिंग करने लगता था गिव हिम ए स्टिक जैसे उसको आप एक स्टिक दे दो एंड से बाबा होल्ड गन और उसे कहो बाबा होल्ड गन बंदूक पकड़ो एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू So what did he do? He just pointed the stick like a gun toward you. And say Baba hold gun, he pointed a stick. Ask him Baba, where is baby? Suppose that if you put a question, Baba, where is baby? He immediately produce अचानक वो एक बेबी को आपके सामने प्रस्तुत करेगा एंड क्रैडल एंड स्विंग इट एंड उसको क्या करेगा वो स्विंगिंग करने लगेगा उसको वो झुलाने लगेगा तो इस तरह से आप देखेंगे जो बाबा है वो उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है अब आगे देखिए अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड एक लकड़ी का छोटा सा पार्ट लेकर के वो बहुत ही प्यार से उसको स्विंगिंग करता है जस्ट लाइक एज ए बेबी एज ए मदर जस्ट केयर टेक केयर ऑफ ए बेबी ऐसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू टेक केयर which is he had carefully concealed hide in his straw bed यानी जो स्टम्प ऑफ वुड है उसको वो बहुत ही सावधानी से स्ट्रा जो बेड उसका है जो घास उसका बेड उसमें उसको हाइड करता है बट बिकॉज ऑफ हिज
tenants children. Poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. You know that there are many small children who are the children of tenant. That is why writer. That is why writer uh, mostly time kept ब्रूनो इन चेन केट ब्रूनो इन चेन अक्सर वो ब्रेनो को चेन में बांध कर रखता था. देन माई सन एंड एडवाइस माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइस हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम. आफ्टर दैट राइटर एज वेल एज writer's sons as well as his friend. Everyone just tried to motivate the mind of his wife that now Bruno, it means Baba, just going to be big. वो बड़ा हो चुका है. It must be sent at to the zoo at Mysore. तो कहते हैं उसको समझाते हैं कि भाई अभी बड़ा हो चुका है, इसे हमें चिड़ियाघर मैसूर भेज देना चाहिए. It was getting too big to keep at home. बताते हैं कि अभी बहुत बड़ा हो गया है, इसको घर में रखना संभव नहीं है. That is why it must be sent to उसको कहाँ भेज देना चाहिए, उसको चिड़ियाघर भेज देना चाहिए. Now here it was getting too big to keep at home and the at home at last weeks of such advice she at last consent. और इस तरह के एडवाइस काफ़ी लंबे मतलब उसको देते रहे लोग. एट लास्ट वो कंसेंट एग्री हो जाती है. एंड hastily and before the she could change his mind, a letter was written to the curator of the zoo. Curator, manager are in charge. तो राइटर सोचता है कि अभी एग्री हुई है, अगर इसके पहले कि इसका दिमाग चेंज हो जाए, ये परिवर्तित कर ले, तो उसके पहले वो जल्दी जल्दी क्या करता है, एक लेटर लिखता है. ठीक है. और लेटर लिख करके क्यूरेटर के पास लेटर लिखता है. ठीक है. और लेटर में लिखता है कि A letter was written to the curator जो did he want a tame bear for his collection. मतलब वो उससे क्वेश्चन करता है क्या उनको एक पालतू बेयर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, अपने जू कलेक्शन के लिए. He replied yes. Finally the answer of the curator came. He said yes, he needs a tame bear for his zoo. The zoo sent a case from Mysore in a lorry. इस तरह से curator of the zoo just sent a केस विथ इन ए लारी. लारी में क्या करता है, वो एक केस भेजता है, एक पिंजड़ा भेजता है जिसमें ब्रूनो को रख करके छोड़ा जाएगा. और डिस्टेंस आप 7 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड अप. एट लास्ट बाबा वॉज पैक्ड अप. नाउ सी 14 देखो. वी ऑल मिस हिम ग्रेटली. राइटर कह रहा है कि वी ऑल फैमिली मेम्बर्स रिमेंबर हिम वेरी मच. मतलब वो कह रहा है कि हम सभी लोग उसको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे. ऑल द मेंबर्स बट इन ए सेंस वी वे रिलीव. लेकिन कुछ मैटर में हमें बहुत शांति मिल रही थी. बिकॉज ब्रूनो बिकम बिग इट नॉट कंफर्टेबल टू कीप इट इन द हाउस. माई वाइफ ऑफ इनकॉन्सोलेबल. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सिबल. माई वाइफ कांट एग्री or can't agree to her mind and she can't feel unable to live without Bruno. मतलब उसको इनकॉन्सिबल था, वो बेचैन रहते थे, वो उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा था, वो नहीं चाहते थे ब्रूनो को उससे अलग करें. सी वेट एंड फेस्ट. वो रोती रहते थे, फ्रेश चिड़चिड़ापन, इरिटेट रहते थे, वो बहुत इरिटेट रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, वो खाना पीना भी नहीं चाहते थे. My wife was in council and he wept and pressed. For the first few days she would not eat a thing. राइटर कह रहा है कि शुरू में कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया ही नहीं. Then she wrote a letter of a number of letter to the curator. उसके बाद उसने शुरू कर दिया बहुत सारे लेटर लिखना क्यूरेटर के पास, उसके बारे में क्वेरी करना ब्रूनो के बारे में. To the curator, how was Baba? As for example, how was Baba? Back came the replies, well but pressing, refused food too. रिप्लाई भी आते थे, उसको बताया जाता था कि बाबा जो है अच्छा है बट ही डिड नॉट लाइक टू ईट, लेकिन वो खा
नहीं रहा, रिफ्यूज टू इट, वो उसने खाना खाना छोड़ दिया है। रिफ्यूज फूड टू। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo। कुछ समय के बाद जो उसके राइटर के जो फ्रेंड्स होते हैं वो मैसूर जाने के लिए सोचते हैं, वो मैसूर जाते हैं। जब मैसूर जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि अगर वो मैसूर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक बार जू चले जाएंगे एंड सिंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग, और आप देख करके आएंगे, उसे बताएंगे कि बाबा वहाँ कैसे है, कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल। जब उसके फ्रेंड्स वापस आते हैं तो रिपोर्ट करते हैं कि ही वॉज वेल, वो बहुत अच्छा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन वो बहुत दुखी दिखता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज प्रेसिंग। जितने भी कीपर्स थे, जो देखभाल करने वाले लोग थे, ये सभी ये कह रहे थे कि जो ब्रूनो है वो बहुत इरिटेट रहता है, वो हैप्पी नहीं रहता है, डिड नॉट लाइक टू ईट एनीथिंग, वो कुछ खाना पसंद नहीं करता है। फॉर गेटिंग लॉन्ग, ठीक है, सेइंग दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेशिंग। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ। राइटर कह रहा है कि 3 महीने तक तो मैं रिस्ट्रेन करने में, उसको रोकने में सफल रहा। फ्रॉम वेस्टिंग मैसूर, मैसूर न जाने के लिए उसको 3 महीने तक मैं रोकने में सफल रहा है कि 2-3 महीने तक इसको मैसूर जाने नहीं दूंगा। देन शी सेड वन डे, अचानक एक दिन वो कहती है, आई मस्ट सी बाबा, वो बाबा से मिलना चाहती है। आइदर यू टेक मी माई कार और आई विल गो बाय सेल्फ बाय बस। वो कहती है कि भाई मुझे या तो कार से ले चलो, नहीं तो मैं स्वयं बस से चली जाऊंगी या तो ट्रेन से चले जाऊँ। सो आई टुक हर बाय कार। एट लास्ट जो राइटर है वो एग्री हो जाता है और वो कंपेल्ड हो जाता है और वो उसको लेकर के कार में जाता है। फ्रेंड हैड कंजक्चर्ड दैट बियर वुड रिकग्नाइज। अब उसके जो फित्र थे वो इस चीज़ को मान चुके थे, एग्री हो चुके थे कि शायद जो बियर है, जो भालू है, जो बाबा है, वो उसको अब पहचान नहीं पाया था। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि अब जो है 3 महीने हो गए, शायद बियर जो है उसको भूल चुका होगा, उसको याद नहीं कर रहा होगा। तो देखिए कंजक्टर दिया है फॉर्म एंड ओपिनियन ऑफ गेस, एक अनुमान लगाना, द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। आई हैड थॉट सो टू। राइटर कह रहा कि मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता था। बट वाइल शी वॉज एट सम यार्ड फ्रॉम हिज केस बाबा saw her। कहते हैं लेकिन जैसे ही वो कुछ यार्ड दूर थी तभी बाबा उसको देख लेता है एंड रिकग्नाइज्ड हर, उसको पहचान जाता है। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस वॉज, बिल्कुल झूमने लगता है खुशी से। ही रैन अप टू हिम, वो दौड़ करके उसके पास आता है। पेटेड हिम थ्रो हर द बार, और बार मीन्स क्या होता है, जो राड होते हैं पिछड़े के, जो सड़ लगे रहते हैं, उसके बाहर से उसकी वाइफ जो उसको पैटेड करती है, उसको थपथपाती है, उसको लविंग केयर करती है। बाबा साथ हर recognized her, she howled with happiness, he ran up to patted him through the bars and she stood on his head in delight। और उसको देख करके उतना वो खुश हो जाता है कि अपने पैर, अपने सर के बल वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, अपने सर के बल खड़ा हो जाता है और अपने हैप्पीनेस को शो करता है कि रियली हाउ ही वॉज हैप्पी टू सी हर, के वास्तव में उसे देख करके वो कितनी उसे खुशी मिली है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी कुड नॉट लीव दैट केस। 3 घंटों तक जो है, जो राइटर की वाइफ है, वो उस पिजड़े को छोड़ के हटने वाली नहीं थी, वही वो जमी रही। सी गेव हिम टी, उसको जो भी वो खाने के लिए लाई थी, जैसे चाय लाई थी पीने के लिए, लेमन मेड उसके लिए, नींबू पानी लाई थी, केक्स लाई थी, आइसक्रीम लाई थी, वो एंड व्हाट नॉट, जो भी उसकी पसंद थी सारी चीज़ें वो उसको लेकर के आई थी और उसकी वाइफ उसको खिला रही थी। देन क्लोजिंग टाइम केम, फिर उसके बाद जू को बंद करने का टाइम आ जाता है। केम एंड वी हैड टू लीव, हम लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मतलब सेइंग ऑफ सेंस, जो लव अफेक्शन होता है वो आसपास दिखाई पड़ता है।
My wife cried bitterly, as same as Baba also cried bitterly. Even the hardened curator, ये जो क्यूरेटर था जो बहुत सख्त था, हार्डन था, सख्त था, और कीपर जो थे वहाँ पे वो भी बहुत सख्त थे, फेल्ट डिप्रेस्ड फेल्ट डिप्रेस्ड, वो सभी बेचारे दुखी हो गए जब वो देखते हैं दोनों के अफेक्शन को, प्रेम को, कैसे एक दूसरे के बिना दोनों परेशान हैं। एज फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए, आई है रिकॉन्सिल माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन। और राइटर रिकॉन्सिल ये जान चुका था, उसके माइंड में बन चुका था कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट आवर, अगले पल क्या होने वाला है। राइटर अंडरस्टैंडेबल, राइटर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन द नेक्स्ट। I knew what was going to be happen next. Oh, please, sir, she asked the curator. At last, his wife just requested the curator, "May I have my Baba back?" Hesitantly, वो पूछती है क्यूरेटर से, क्या मैं अपने बाबा को दोबारा वापस ले जा सकती हूँ? Hesitantly, doubtfully, संकोच करते हुए, he answered, "Madam, he belongs to the zoo and is government property now." कहता है, मैम अभी ये चिड़िया का भाग है और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है, तो he belong to the zoo and is government, how now I can't give away the government property। और वो कहता है कि भी चूँकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसी और को दे नहीं सकता। आई कैनट गिव एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बट ऑफ माई बॉस, लेकिन अगर मेरे बॉस चाहते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ बेंगलोर एग्री, अगर वो एग्री हो जाते हैं, वो आदेश करते हैं, तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से आप उनको वापस ले जा सकते हैं। देन फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। इसके बाद राइटर जो है वो क्या करता है, बेंगलोर चला जाता है एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट, बेंगलोर सुपरिटेंडेंट से मिलने जाता है। ए टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेसिंग फॉर इच अदर। उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही टीयरफुल अश्रु प्रार्थना करती है, उससे कहती है बाबा और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना हम लोग इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेसिंग फॉर इच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। उससे प्रार्थना करती कि भाई आप उसे मुझे वापस दे दो। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। जो मैनेजर, जो सुपरिटेंडेंट था, ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड फाइनली ही एग्री। नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग, ठीक है, टेलिंग हिम टू लेंड अस केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। तो वो कहता है कि भाई इनके लिए केस की भी व्यवस्था करोगे ताकि आसानी से उसको लेकर के बेंगलोर जा सके। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, आई होप इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। थैंक्स वंस अगेन।